students, I am going to study anatomy of flowering plants, which is the uh, topic of your 11th class. Like the higher plants have high complex bodies, which are made up of various kinds of cells. These cells, the higher uh, plants, these are made up of highly complex bodies that are or the various kinds of cells. These cells cluster together to form a particular function. When these cells cluster together in order to perform a specific function, this cluster of cell is called as the tissue. The cluster of cells when perform a specific function, then this is called as the tissues. And there is a group or collection of similar cells, or it may be the dissimilar cells that perform or help to perform a common function or having common origin. Yani ke if the cells which are having common function and these are having common origin. Then there the tissues are of various types. What are the different types of tissues in plants? In plants, there may be the meristematic tissues. There may be the permanent tissues, or third class is the secretory tissues. Now these permanent tissues, these are again of the different types. These are the simple permanent tissues, or these are the complex permanent tissues. Okay, the simple permanent tissues, these are made up of only one type of cells. These are only made up of one type of cells. Or the complex permanent tissues, these are made up of many kinds of cells. Okay, these are made up of many kinds of cells. The simple permanent tissues, these are again divided into, these may be the parenchyma, these may be collenchyma, or these may be sclerenchyma. Okay, the sclerenchyma is further differentiated into fibers, and these are the sclerids. These are the fibers and the sclerids. So, और this type of जो complex permanent tissues है, these are made up of many kinds of cells. These are the xylem and phloem. Okay, so the tissues are of three kinds: meristematic tissues, permanent tissues, or the secretory tissues. Permanent tissues, these are further of this. These may be the simple permanent tissues and the complex permanent tissues. Simple permanent tissues is further categorized into parenchyma, sclerenchyma, collenchyma, or the sclerenchyma. Okay, the sclerenchyma is then further fibers or the sclerids. Or these complex permanent tissues, these are the xylem and the phloem. So आज जो हमने करना है इस क्लास में, there is this different types of the tissues. Okay, so the first type of the tissue is the meristematic tissues. So meristematic tissue
like in case of vascular plants, the vascular plants, these have the ability to grow. Okay, the vascular plants have ability to grow. उनकी ग्रोथ भी होती है, उनकी डेवलपमेंट भी होती है और उनकी डिफरेंशिएशन भी होती है, थ्रू आउट देयर लाइफ। तो थ्रू आउट देयर लाइफ जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है और डिफरेंशिएशन भी होती है। सो व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, दीज हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन। जो भी सेल्स में सेल डिवीजन होंगी वो सेल्स कौन से होंगे? दीज आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और इनकी एनलार्जमेंट भी होगी, इनकी डिफरेंशिएशन भी होगी, फर्दर डिफरेंशिएशन, एंड इन्हीं से ही आपके न्यू सेल्स जो हैं दीज आर फॉर्म्ड। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वैसे अगर बात करोगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं? द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दीज आर द सेल्स विच हैज द एबिलिटी टू डिवाइड। ये जो होते हैं, दिस हैज द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, तो इन्हीं में सेल डिवीजन होगी, इन्हीं की आगे एनलार्जमेंट होगी और इन्हीं में ही आगे डिफरेंशिएशन होगी और वो सेल्स डिफरेंशिएट करके आगे न्यू सेल्स बनाएंगे। ठीक है, और न्यू सेल्स भी बनेंगे, वी कैन से न्यू टिश्यूज, वी कैन कॉल न्यू टिश्यूज भी बनेंगे और न्यू टिश्यूज से आगे आपके ऑर्गन्स भी बनेंगे। ओके, तो ये सारे जो होते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल से इनमें सेल डिवीज़न होगी, इनमें एनलार्जमेंट होगी, फिर इनमें डिफरेंशिएशन होगी, फिर ये जो है इनसे न्यू टिश्यूज़ बनेंगे और ये टिश्यूज़ आगे जाके क्या बनाएंगे? आपके प्लांट ऑर्गन्स। ओके, सो जितने भी, अब हम बात करेंगे कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते कौन से हैं। जितने भी एम्ब्रियो सेल्स हैं, all embryo cells these has the ability to divide. Okay, these has the ability to divide, लेकिन जब प्लांट जो है इट बिकम इंडिपेंडेंट, जब वो बड़ा हो जाता है तो उनकी जो सेल डिवीजन होती है इट गेट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरियाज। ओके, कि all the embryonic cells these has the ability to divide, these are capable of division। लेकिन जब प्लांट इंडिपेंडेंट होता है तो उनमें जो डिवीजन होगी इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर एरियाज। तो व्हेन दिस सेल डिवीजन इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर एरियाज, दैट एरियाज आर कॉल्ड एज द मेरिस्टेम्स। ओके, सो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, ये जो मेरिस्टेम होता है और द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ये आगे क्या बनाते हैं? दीज फॉर्म द न्यू सेल्स, न्यू सेल्स बनाएंगे। ये न्यू सेल्स जो हैं ये आगे डिफरेंशिएट होंगे। मम्मा क्या कर रहे हो? ये आगे डिफरेंशिएट होंगे, ये डिफरेंशिएट होके क्या बनाएंगे? आगे परमानेंट टिश्यूज। ओके, ये आगे क्या बनाएंगे? परमानेंट टिश्यूज। तो इनके जो सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स जो होते हैं, दीज मे बी राउंडेड सेल्स होंगे, मैनी शेप्ड होते हैं। दीज में बी राउंडेड, दीज में बी ओवल, दीज में बी पॉलीगोनल और दिस में बी रेक्टेंगुलर इन शेप, एनी टाइप ऑफ शेप। ठीक है, एंड एक इनमें जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं
These are compactly arranged cells. Compactly arranged cells होते हैं. This is the important characteristic of the meristematic tissues. So these are the compactly arranged cells. These compactly arranged cells, these are without intercellular spaces. ओके ये ऐसे होते हैं. दीज आर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस. इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस जो हैं ये नहीं होती. ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज कि ये जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं दीज हैव थिन इलास्टिक प्राइमरी वॉल्स. इलास्टिक प्राइमरी वॉल होती है इनकी. दीज आर थिन इलास्टिक प्राइमरी वॉल. और इनकी जो वॉल है ये किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज. द वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. ठीक है. उसमें सेलुलोज भी होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म भी होता है. डेंस प्रोटोप्लाज्म विद मेनी वैक्यूल्स एंड द लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. ओके. इनका एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर होता है कि दीज सेल्स डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड. दीज सेल्स डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड. ये इनमें फूड जो है वो स्टोर नहीं होता. ठीक है. और इनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और ये नहीं है कि सेल डिवीज़न जब भी होगी वो किसी भी प्लेन में होगी. जब भी सेल डिवीज़न होनी है इट सेल डिवाइड्स इन ए पर्टिकुलर प्लेन. ओके. सेल डिवाइड्स इन ए पर्टिकुलर प्लेन. देन नेक्स्ट इज द कि दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स on the basis of position these meristematic cells are of three types. On the basis of position, what are these three types? That is the apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. ओके. तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ये कौन कौन से होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और द लेटरल मेरिस्टेम. जो एपिकल मेरिस्टेम है मींस जो एपिसिस पे होगा इन ग्रोइंग एपिसिस. जो ग्रोइंग एपिसिस में होगा, ग्रोइंग पॉइंट्स में होगा, ग्रोइंग एपिसिस ऑफ मेन रूट और द शूट. ठीक है. ग्रोइंग एपिसिस ऑफ मेन रूट और द मेन शूट. और इनकी जो ग्रोथ होती है वो लीनियर ग्रोथ होती है. लीनियर ग्रोथ होती है. सीधा ही ग्रो करेंगे ये. इंटरकैलरी मीन्स बिटवीन द रीजन्स ऑफ बिटवीन. ये कहाँ पे होगा? बिटवीन द रीजन्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज जो परमानेंट टिश्यूज के बीच में होंगे वो कौन सा होगा? इंटरकैलरी. दिस मेरिस्टेम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ. किस में होगी इसकी ग्रोथ? इन लेंथ. ये लेंथ इंक्रीज करते हैं प्लांट की. ओके. और जो लेटरल मेरिस्टेम होगा ये क्या करता है? लेटरल साइड्स पे होगा. और ये क्या इंक्रीज करेगा? डायामीटर को इंक्रीज करेगा. ये किसको इंक्रीज करेगा? डायामीटर को. ओके. तो अब जैसे डायग्राम में देखोगे अगर आप, जैसे ये प्लांट का डायग्राम है, किसी भी प्लांट का ले लो आप. तो किसी भी प्लांट का अब ये जो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होगा? एपिसिस पे. लाइक दिस. दिस इज इन द एपिसिस. हाँ, दिस इज इन द एपिसिस. तो यहाँ पे ये जो मेरिस्टेम होगा वो कौन सा होगा? एपिकल मेरिस्टेम. ओके. एट द एपिसिस. और जो परमानेंट टिश्यूज के बीच में होगा लाइक यहाँ पे ये चीज यहाँ पे, ये क्या है आपका? इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ओके. और जो साइड्स में होगा जैसे ये वाला जो मेरिस्टेम है ये कौन सा है? लेटरल मेरिस्टेम. ओके.
क्लियर। अब ये तो था कि आपका जो मेरिस्टेम होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ये एपिकल होता है, इंटरकैलरी होता है और लेटरल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड मेथड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड मेथड ऑफ डेवलपमेंट, ये फर्दर 3 तरह के हैं, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, इस क्लास में हम सिर्फ जस्ट मेरिस्टेम की बात करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करेंगे। प्रोमेरिस्टेम जो है इट ओरिजिनेट फ्रॉम द, कहाँ से, प्रो मीन्स जो पहले ही ओरिजिनेट हो जाता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियो। व्हेन इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड प्रीमोडियल मेरिस्टेम भी बोलते हैं इसको, प्रीमोडियल मेरिस्टेम भी बोलते हैं हम, और इसको क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। ओके, सो ये कहाँ पे होता है, इट इज प्रेजेंट इन द रीजन्स वेयर एन ऑर्गन और ए पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी इनिशिएटेड। ठीक है, जहाँ से आपकी प्लांट बॉडी जो है या ऑर्गन जो है वो स्टार्ट होना है, ऑर्गन इज इनिशिएटेड, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो द ग्रुप ऑफ, अब प्रोमेरिस्टेम होता क्या है, ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स, जो सबसे पहले सेल्स होंगे जिससे आपकी प्लांट बॉडी या ऑर्गन बनेगा, वो जो इनिशियल सेल्स होंगे, ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स, वो और द प्लांट पार्ट, और प्लांट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द प्रोमेरिस्टेम। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये बहुत सारे नंबर में होंगे, दीज आर लिमिटेड इन नंबर, ये लिमिटेड होते हैं, दीज आर लिमिटेड इन नंबर। ठीक है, एंड डिवाइड रिपीटेडली, यही डिवाइड होके प्रोमेरिस्टेम, दीज गिव्स राइज टू द प्राइमरी मेरिस्टेम, यही प्राइमरी मेरिस्टेम में आपके राइज होते हैं। अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, प्रो मेरिस्टेम का तो आपको क्लियर हो गया कि प्रो मेरिस्टेम कहाँ से होता है, जो एम्ब्रियो से ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रीमोडियल और द एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ से बना है, प्रो मेरिस्टेम से। प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, these originate from the embryonic stages of the plant, these originate from the embryonic stages of the plant। ओके, ये कहाँ से हुआ, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ द प्लांट। कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, which is concerned with the formation of primary meristem, primary permanent tissues of the primary plant body। सिर्फ कौन से एम्ब्रियोनिक पार्ट्स, जहाँ से आपके प्राइमरी जो है परमानेंट टिश्यूज बन रहे हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बन रहे हैं, वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज आगे जाके क्या किसके होते हैं, प्राइमरी प्लांट बॉडी के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसकी बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोटोडर्म होती है, प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म जो होती है ये क्या बनाती है, इट प्रोड्यूसेस, ये क्या बनाएंगे, इट प्रोड्यूसेस एपिडर्मल टिश्यूज, एपिडर्मल, ये एपिडर्मल टिश्यूज बनाएंगे प्लांट में, एपिडर्मल टिश्यूज। प्रोकैम्बियम होगी एक, प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम जो होती है ये क्या प्रोड्यूस करती है, प्राइमरी वास्कुलर एलिमेंट्स। ओके, और जैसे इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम में ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, कॉर्टेक्स एंड पिथ, जो बीच में होते हैं। ओके, दैट इज द प्राइमरी मेरिस्टेम।
लास्ट इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम. सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है, इट ओरिजिनेट एज न्यू मेरिस्टेम. इट originates as new meristem. ओके, न्यू मेरिस्टेम कहाँ से बनेंगे? फ्रॉम द परमानेंट टिश्यूज. न्यू मेरिस्टेम फ्रॉम परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज. तो ये कहाँ से बन रहे हैं? ओरिजिनेट एज ए न्यू मेरिस्टेम फ्रॉम द परमानेंट टिश्यूज. कौन से परमानेंट टिश्यूज? जो ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन में जा चुके हैं. ठीक है, विच ऑलरेडी अंडरगोन द डिफ्रेंसिएशन. जिनकी ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन हो चुकी है, वो परमानेंट बन गए हैं. अब उनमें डिवीजन कैसे होगी? जैसे इनमें कोई भी सेल या पार्ट ऑफ द सम ग्रुप ऑफ सेल्स, ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, ये क्या करेंगे? दीज एक्ट्स एज ए मेरिस्टेम. These acts as a meristem, or these which are already differentiated cells. So these differentiated cells undergo the de-differentiation. So they arise in plant organs whenever and wherever they need it. ये कहीं पे भी जहाँ पे ज़रूरत होगी इनकी, वहीं पे ये जो हैं ओरिजिनेट हो सकते हैं. जैसे मान लो आपका कोई प्लांट का लीफ टूट गया, ठीक है, वो फॉल ऑफ हो गया प्लांट का लीफ. अब प्लांट का लीफ जो है वहाँ से फॉल ऑफ होगा, वो न्यू प्लांट बनेगा. न्यू प्लांट बनने के लिए उसको क्या चाहिए वहाँ पे? अगर वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे. मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से होते हैं? जो दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिवाइड. तो वो जो वहाँ पे सेल्स होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो उनको हेल्प करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लीफ. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ये भी लिख कैम्बियम ऑफ द रूट और द कैम्बियल रिंग्स. ओके, नो, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते कौन से हैं. जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं परमानेंट टिश्यूज और द स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यूज उसको हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, ओके, बाय बाय.